Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for +1 Political Science Arts. Now, the name of the chapter is Development, and let us start with the topic Development and Lifestyle. First of all, I want to tell about you something that is necessary for development and something that are not necessary for the development. Let us start with the discussing these topics. Now look at this picture. These pictures are of Satyagraha in the village of Dhomkhedi in Narmada Valley. You know that some movement was related with the Narmada Bachao Andolan. When the government started making the dam on सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, तो जो लोग थे उन्होंने इस कंस्ट्रक्शंस के अपोज करना शुरू कर दिया. एज अ रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम, जो वाटर था नर्मदा, दैट्स वाई इट फ्लडेड द वैली. नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उसमें प्रोटेस्टर ने चूज किया टू फेस द राइजिंग वाटर. व्हेन द वाटर रोज डेंजरसली अप टू द शोल्डर्स ऑफ द एक्टिविस्ट्स, द गवर्नमेंट अरेस्टेड देम. फाइन. इसी तरह से और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट रिलेटेड हैं, जिससे कि जो सिविलियन हैं या सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं उनकी लाइफ के बीच में ये डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा opponent बनकर आया. But if we study about the development and lifestyle, an alternative model of development would also try to move away from the high cost, ecological wasteful, technology driven notion of development. जो development है, that should not be measured only by the number of cell phones in the country or by the sophisticated weapons which are developed or by the size of car which people drive. Development जो है वो depend करती है by the quality of life enjoyed by the people in terms of happiness, harmony and satisfaction of essential needs. At one level, efforts that should be made to conserve natural resources and use renewable resources of energy as far as it possible. Because you know that जो resources हैं उनको बनने में थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे, यूज दीज रिसोर्सेज एंड दीज रिसोर्सेज आर फिनिशिंग एट एन अलार्मिंग लेट. एफर्ट्स किए गए हैं सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एंड बायोगैस प्लांट, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स, कंपोस्ट पिट्स टू जनरेट मैन्योर आउट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. These are example in such a direction. कुछ activities जो हैं have to take place at local level, ठीक है, and therefore demand higher involvement from people. कुछ big projects होते हैं जैसे कि डैम्स वगैरह हो गया, मल्टी प्रोजेक्ट डैम्स. These big projects not the only way to effect big improvement. ऑम्पोनेंट्स जो थे बिग डैम्स के, उन्होंने एडवोकेट किया एक सीरीज ऑफ स्मॉल डैम्स, वंस विच रिक्वायर्ड मच लेस इन्वेस्टमेंट. कैजुअल मिनिमल डिस्प्लेसमेंट कैन बी बेनिफिशियल टू द लोकल पॉपुलेशन. एक और दूसरा लेवल, देयर इज ऑल्सो अ नीड टू स्केल डाउन आवर नीड फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. This is done by changing the lifestyle of the people. This is a tricky issue because it may appear as if people are being asked to accept a lower standard of living. This could also be seen as a curtailment of lifestyle and freedom to choose
बट जो डिबेटिंग है द पॉसिबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल जो है could also mean increasing avenues for freedom, creativity, किसके कारण? By opening up alternative visions of the good life. कुछ ऐसी पॉलिसीज भी हैं जो कि हाई डिग्री ऑफ कोऑपरेशन चाहिए जिसमें बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल अक्रॉस द कंट्रीज. इसका मतलब क्या हुआ? दिस वुड मीन अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑन सच मैटर्स. अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग वंस फ्रीडम. Think of people not as passive consumer but as active participation in deciding development goals. ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम इस एग्रीमेंट पर रीच करें ऑन सच इश्यूज. तो इस प्रोसेस में जो नोशंस हैं राइट्स के, फ्रीडम, जस्टिस, उनको एक्सटेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So this is the chapter development. Now, what is the conclusion of chapter development after a whole study of the chapter? जो idea है development का, that refers to the desire for a better life. ये एक बहुत ही पावरफुल डिजायर है और ये भी होप की जाती है कि इम्प्रूवमेंट जो है इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ ह्यूमन एक्शन. इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा हाउ वाइडली एक्सेप्टेड वर्जन्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इम्प्रूवमेंट हैव कम अंडर क्रिटिकल स्क्रूटिनी. एक मल्टी प्रोलॉन्ग्ड सर्च हमने करी है दैट इज नेसेसरी फॉर अ मोर इक्विटेबल, सस्टेनेबल एंड डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. इसलिए एक ऐसा प्रोसेस जहां पर नंबर ऑफ कंसेप्ट जो हैं पॉलिटिकल थ्योरी के हमें नेसेसरी हैं, सच एज इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, राइट्स, दैट हैव बीन री इंटरप्रेटेड. एक इश्यूज और भी कई ऐसे अराइज हुए हैं while pursuing the goal of development, reveal that जो choices हैं we make have an impact upon others. कुछ ह्यूमन बीइंग्स हैं या अदर स्पीसीज हैं इस वर्ल्ड में जिनको की डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसलिए हम अगर अपने आप को देखें एज अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिवर्स, फॉर आर फीड्स आर लिंक टुगेदर. इसके अलावा कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो दूसरों को इफेक्ट नहीं डालते, बट कुछ ऐसे भी हैं जो इम्पैक्ट अपॉन माई ओन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज. सो वी नीड therefore to choose carefully, keeping in mind not just our present needs but also our long term interest. So जो डेवलपमेंट है वो नेसेसरी है फॉर अ कंट्री, also for the citizens of the country for leading a successful and happy life. All should give an opportunity to attain equality, justice and happiness in the country, and they success in this process by taking part in the development of the country. ये चैप्टर अब यहीं पर फिनिश है. नेक्स्ट हम अब अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे लेक्चर में. थैंक यू स्टूडेंट्स.